Hello and good morning. I welcome you all to the Raftar Current Affairs series presented you by Alpha S Academy, and I hope that you will have a very happy and good day, and I wish all of you a very happy Mahashivratri. So let's begin for the day. The first topic for the day is International Court of Justice. Now what is happening, of course, जो सोचा था वही हुआ. यूक्रेन मूव्ड दी to the International Court of Justice and filed a case against Russia. Now, our concern is International Court of Justice. Now, people tend to confuse between International Court of Justice and International Criminal Court and Permanent Court of Arbitration. तो ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो आर्बिट्रेशन के लिए है. आर्बिट्रेशन मीडिएशन वगैरह जो ऑल्टरनेटिव रेमेडीज़ आई हैं ना, उनके लिए है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. आईसीसी जो है, जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के क्राइम्स जो हैं उनके लिए है, और ये दोनों ही जो है ये यूएन की एम्बिट से बाहर है. ठीक है, दे आर नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. बट दिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इट इज़ इन हेग, नीदरलैंड्स. एंड वट it is one of the six principal organs. Now quickly I'll tell you what are the other five. Other five are the General Assembly, the United Nations Security Council, the ECOSOC, that is Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the Secretariat. Also, the structure of International Court of Justice, that there are 15 judges which are for a term of 9 years, and we are very happy that one of the judges is from India. Please tell me in the comment box what is the name of that judge. Okay, now they are elected by United Nations General Assembly and Security Council. Yesterday only there was an emergency session of General Assembly in which you can see the various countries delegations speaking about the Russia-Ukraine crisis. Now there is too much of Russia-Ukraine crisis, I guess, and you guys are like now थक गए हो आप लोग भी सुन के. But you know, the world theater is, you know, being staged, or the world theater is being taken by that particular play, and you know, we should see and we should learn from it. ऑफिशियल लैंग्वेज की इंग्लिश और फ्रेंच है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इसका जो जजमेंट होता है वो फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है पार्टीज पे, और वो अपील कहाँ जाओगे आप? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ऊपर कहाँ जाओगे? अब तो कुछ हमें गैलेक्सी कोर्ट ऑफ अपील बनाना पड़ेगा. तो इट इज़ बाइंडिंग एंड विदाउट अपील. और जो इसकी जो इसके एडवाइजरी ओपिनियन भी होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं. नाउ दिस सेकंड इज डगोंग. नाउ डगोंग इज अ वेरी स्पेशल केस बिकॉज इट इज़ द ओनली एग्जिस्टिंग स्पीशीज ऑफ हर्बीवोरस मैमल दैट लिव्स एक्सक्लूसिवली इन द सी. तो ये डगोंग क्या है? एक तो हर्बीवोरस मैमल है, इट लिव्स एक्सक्लूसिवली इन द सी, उसको सी काओ भी बोलते हैं. नाउ वट why it is in the news? That because it is Tamil Nadu has set up a dugong conservation reserve, and it is in the area of Gulf of Mannar and Park Bay. Now quickly see in the comment box where is Gulf of Mannar and where is Park Bay, which is north, which is south. Okay, and now see this protection status. IUCN में वनरेबल है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता हमारे लिए, बट बिकॉज न्यूज़ में था तो इसको बस वनरेबल याद कर लो. और शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, जिसमें कि 6 शेड्यूल्स हैं, और मोस्टली एनिमल्स फर्स्ट में आ ही जाते हैं. ठीक है, 6 में तो प्लांट्स हैं, 5 प्लांट्स हैं. ओके, और जो इनका होता है लो प्रोडक्टिविटी रेट होता है. ओके, नाउ क्लासिक लैंग्वेज. The Maharashtra is demanding, there is a long demand of Marathi being included in the classical language, and there are total of 6 classical language which are included in the 8th schedule of the constitution, and they were included in various years, and we'll quickly see. Tamil was the first one, which was included in 2004, then Sanskrit, which was included in 2005, then there was Kannada and Telugu, which were included in 2008. Then there was Malayalam, which was included in 2013, and there was Odia, which was included in 2014. Now the constitutional provision related to is it that it is in these all the 6 languages are listed in the 8th schedule of the constitution. Now what are the guidelines?
quickly we'll see that it is should be of very early records and text should be there, मतलब 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए ये, ठीक है। और इसका जो होना चाहिए, अब ऐसा नहीं किसी ने कह दिया कि भैया ये लैंग्वेज 1500 से 2000 साल पुरानी है, उसका कोई टेक्स्ट, उसका कोई हिस्ट्री, रिकॉर्ड हिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी अ वेरी वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर। भाई मतलब एक कम्युनिटी है, ठीक है, जो उसकी वेरियस जनरेशन है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि नहीं भाई ये जो है वेरियस जनरेशन से ये लैंग्वेज हमारी जो है मदर टंग बोल लीजिए आप, चलती हुई आ रही है, हम इसको मदर टंग के रूप में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इट शुड बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। इट शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न बेनिफिट्स। मॉडर्न जो आज जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ना, जो चेंज है, जो आज हम हिंदी भी इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत डिफरेंट है। द इंग्लिश वी यूज टुडे इज़ ऑल्सो वट द इंग्लिश वॉज यूज इन द एंशियंट टाइम्स। सो इट शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न मेथड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पता ही नहीं लगा पा रहे हो कि आज की लैंग्वेज है या एंशियंट है। इट शुड लुक एंशियंट इन नेचर। तो दीज आर दी क्राइटेरियाज। नाउ इतना डिमांड क्यों होता है? एक तो थोड़ा सा जो है आपको एक रीजनल, या मैं कहूँ कि आपको एक कम्युनिटी वाइज, जिस कम्युनिटी की भाई लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा उसको, तो वो एक प्राउड फीलिंग होती है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। तो वो तो उसका पॉलिटिकल एंगल है। बट जो उसका रिटर्न एंगल है वो है कि जो हमारी HRD मिनिस्ट्री विच इज़ नाउ एजुकेशन मिनिस्ट्री, वो प्रमोशन के लिए इसको वेरियस प्रोग्राम्स चलाती है, ठीक है। उसमें इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, वेरियस सीट्स, यूनियन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वेरियस सीट्स चलाने की बात चल रही है कि उसके लिए जो है प्रोफेसर्स लाए जाएँ, तो विच विल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, है ना। पर्टिकुलर सी इफ़ आई नो अ पर्टिकुलर लैंग्वेज एक्स, ओके, एंड ओनली सर्टन फ्यू पीपल, नंबर ऑफ पीपल न्यू इट, तो जब उसके लिए उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए पोस्ट आएगी तो देर विल बी लेस नंबर ऑफ पीपल एंड देर विल बी लेस कॉम्पिटिशन, और which in my opinion is a good thing. Like we should try to conserve the diversity, each kind of diversity in this country. And language, language तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। language की जो diversity है वो तो conserve होनी ही चाहिए, ठीक है। तो these are all the things. Now the next is the short news. Bhakra Vyas Management Board, it is a statutory body constitution under Punjab Reorganization Act. It is for the Bhakra Dam, सुना होगा आपने, Bhakra Nangal Dam. Now Bhakra Dam is in Himachal Pradesh and Nangal Dam आप थोड़ा सा नीचे जाओगे ना हिमाचल से, एकदम ही बॉर्डर पे ही है, बड़ा सुंदर डैम है, कभी जाइएगा देखिएगा। उसके नीचे आपको नंगल डैम मिलेगा। नंगल डैम इज इन पंजाब। तो भाखड़ा नंगल डैम एक साथ बोल देते हैं। तो ये जो बोर्ड है ये वेरियस चीज़ें देखता है कि द शेयरिंग ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पसेस, फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर्पसेस, जो बिजली जनरेट होती है वो किस किस स्टेट को किस शेयरिंग पे जाएगी, तो ये सब जो है इस मैनेजमेंट बोर्ड के अंडर है, ओके। और ये कौन कौन सी रिवर्स का वाटर देखता है? सतलुज, रावी, ब्यास। नाउ सेकेंड इज advanced medium combat aircraft. Now there is different kinds of fighter aircrafts, okay. कुछ जैसे मल्टी रोल होते हैं, कुछ फाइटर बॉम्बर होते हैं, कुछ स्ट्राइक एयरक्राफ्ट होते हैं। तो आज जो न्यूज़ है वो है कि DRDO एंड सैफरान, नाउ सैफरान इज़ अ फ्रेंच इंजीनियर मेकर, ठीक है। एंड फ्रेंच जो इंजन्स होते हैं वो वर्ल्ड में बहुत फेमस है। हमने अभी एक हमारा जो रफाल है वो भी फ्रांस से लिया है, तो वन ऑफ द बेस्ट इंजन्स माने जाते हैं। एंड I hope in future will also develop it. And we have, we are France are jointly developing a advanced medium combat aircraft, which will be a 5th generation aircraft for the Indian Navy and Indian Air Force. It has supersonic speed. Now supersonic speed is equal to 1 Mach is equals to 1234.8 kilometer per hour, which is equal to speed of sound, which is equal to speed of sound. And supersonic speed is between 1.2 to 5 Mach and hypersonic is between 1.2 to 5 Mach and hypersonic is between 5 to 10 Mach.
Okay, and it would be third supersonic jet of Indian origin after the HAL Marut and HAL Tejas. That is, HAL stands for Hindustan Aeronautics Limited. हर्मेट वाइपर कुछ नहीं है, डाटा एक मालवेयर है जो कि अगर आप कंप्यूटर में घुस जाए तो जिस डाटा को उसने टारगेट कर रखा है उस डाटा को वैसे डिलीट करेगा कि आप कभी उसे रिट्रीव ही नहीं कर पाएंगे। वही वाली बात हो गई कि इलाका में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा था ना। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर विच डिलीट्स डाटा इन सच अ वे दैट इज इरिट्रीवेबल। अब देखो यहाँ पे ना हमने डेफिनेशन डाली है यार, कभी ना कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना मेंस में तो इसको थोड़ा सा याद कर लो तो बड़ा फ़ायदा रहता है। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मालवेयर और मिलीशियस सॉफ्टवेयर इज़ एनी प्रोग्राम और फाइल दैट इज़ इंटेंशनली harmful to a computer network or server. Please go to pause the video here and see 2-3 times। एक बार याद कर लो तो कुछ याद रह जाएगा। Now Vanera D mission was V for Vanera, V for Venus. It was a joint mission of Russia Roscosmos and USA's NASA, and you know after the USA has put sanctions on Russia, now Russia will develop it, will alone develop it, or it will take China's support. We don't know what will happen. We don't know many things what will happen. And the last one is cyclone Imenati. It is Madagascar इधर है थोड़ा सा। आपका जो है ईस्टर्न साइड देखोगे अगर अफ्रीकन कंटिनेंट की, तो यहाँ एक छोटा सा आपका ऐसे लंबा सा आइलैंड मिलेगा। दिस इज़ मेडागास्कर। यहाँ पे जो है साइक्लोन आया है और ये एक 5th साइक्लोन था इस साल का नहीं, 1 मंथ में शायद। एंड सॉरी इस साल का ही था ये। एंड अदर्स वर tropic, and these are kind of tropical cyclones. Others were Anna, Batsirai and Dumako. So I think that will be all for today. I wish all of you a very happy and healthy day. Take care and we shall see you tomorrow. Thank you.